Hello students, how are you all? Doing very well. We have started our first unit and today we will continue it. We had seen in last two lectures that a letter is written to Connie and we had finished the first two parts. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, hand outstretched. हैंड आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथ खोलकर. आई कैन नॉट इमेजिन, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कोनी को वो एड्रेस कर रहे हैं कि मेरी क्या फीलिंग्स थी जब मैंने वो फ्रिट्ज ऑफिसर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्रिट्ज के बारे में बताया था. ये फ्रिट्ज ऑफिसर की आईज में जब मैंने देखा वो कैसे अप्रोच कर रहा था, हैंड आउटस्ट्रेच, अपने हाथ फैलाकर वो मेरे सामने जब आ रहा था, मुझे अप्रोच कर रहा था, तब मेरी क्या फीलिंग्स थी इसके बारे में आप सोच नहीं सकते. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly, holding it. मेरे हाथ को, मेरे हैंड्स को warmly पकड़कर उसने अपना परिचय दिया. I am Hans Wolf. I am from Dusseldorf. It is the name of area. I play the cello in the orchestra. The meaning of cello is written here on right side. A musical instrument like a large violin. बड़े वाला वायलिन जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेलो. ये आपको याद रखना है. उसका नेम था हेंस वॉल्फ. ही वॉज फ्रॉम डसेल्ड्रॉफ एंड ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. ये पूरा वाला म्यूजिक का जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ये ऑर्केस्ट्रा में वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे? सेलो प्ले कर रहे थे. हैप्पी क्रिसमस. और ऐसा अपना इंट्रोडक्शन देकर उसने बोला हैप्पी क्रिसमस. याद रखना है क्या नाम था उसका? फ्रिट्ज ऑफिसर, यानी कि वो जर्मन ऑफिसर था. उसका नाम था हेंस वॉल्फ. ही वॉज फ्रॉम डसेल्ड्रॉफ and he played cello. It means a large musical instrument like violin, and he wished happy Christmas. Captain Jim McPherson, जब मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, I am Captain Jim McPherson and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset. मैं डोरसेट में स्कूल टीचर हूँ. I am a school teacher from Dorset in west of England. Dorset. Dorset is the name of West England. What is the name of the person who is writing a letter? Jim McPherson. He wished happy Christmas, Merry Christmas. And what was Mr. Jim McPherson? He was a school teacher. Where? In which city? Dorset. Where is Dorset? Dorset is in the west of England. Dorset, he smiled. Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. मैं इस जगह को जानता हूँ. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. क्या शेयर किया उन दोनों ने? तो हमारे मैकफर्सन के पास रम था और उसके पास था एक्सेलेंट सॉसेज. दोनों ने ये शेयर किया. एंड वी टॉक्ड. कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने इतनी बातें की. He spoke almost perfect English. Though he was German, but he was speaking perfectly in English. But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. But reality was that he had never set foot in Dorset. उसने
डोरसेट जहाँ पे हमारा मैकफर्सन रहता था, वहाँ पे एक भी पाँव कभी नहीं रखा था। He had never set foot in Dorset, never even been to England, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। He had learned all he knew of England from school, तो इंग्लैंड के बारे में उसने कहाँ पे सीखा था? फ्रॉम स्कूल। क्या नाम था उसका? इस पेज पर हमने देखा था, उसका नाम था हैंस वॉल्फ, एंड वो जर्मनी में डसलड्रॉफ में रहता था। और हमारा जो राइटर है वो मैकफर्सन, वो डोरसेट में रहते थे। बट जो जर्मन सोल्जर था वो परफेक्टली इंग्लिश में बोल रहा था, उसको सब पता था। कहाँ पे सीखा उसने सब कुछ? फ्रॉम स्कूल। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी इज अ famous English writer. His favorite book, Far from the Madding Crowd. ये भी आपको याद रखना है, उसका फेवरेट राइटर कौन था, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. ये सब के बारे में हमने बातें की। He had a wife and one son. उसको एक वाइफ और एक सन था। Born just 6 months ago. उसका जो बेटा था वो 6 महीने का था। As I looked about me, there were huddles of khaki. यहाँ पे हम पढ़ते हैं, There were huddles of khaki and grey everywhere. सब जगह पे खाकी एंड ग्रे कलर्स यूनिफॉर्म में लोग घूम रहे थे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। दे वर नॉट एनिमीज, soldiers of Germans and soldiers of England, they were fighting, they were on war and it was battlefield. युद्ध भूमि थी पर क्रिसमस थी, इसलिए दोनों साइड के सोल्जर्स थे। वे लोग, उन दोनों ने सोचा कि हम लोग क्यों क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो ऑन नो मैन्स लैंड दे वेर एंजॉइंग, दे वेर स्मोकिंग, दे वेर लाफिंग, दे वेर टॉकिंग, दे वेर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। Hence Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. Sorry. और हमारे राइटर और हैंस वॉल्फ ने क्या किया? दे शेयर्ड वंडरफुल क्रिसमस केक। कोनी ने अपने हस्बैंड को क्रिसमस केक सेंड की थी, उसने उसको शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपान, इसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया गया है। मार्जिपान इट मीन्स अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. अपनी लाइफ में इतना अच्छा मार्जिपान उसने कभी टेस्ट नहीं किया था। I agreed, और मैं उससे एग्री किया। We agreed about everything. He was my enemy. मेरा एनिमी था, मेरा दुश्मन था, फिर भी हम लोग सब बातों में एग्री कर रहे थे। There never was a Christmas party like it, Connie. और ऐसी अच्छी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। Then someone, I don't know who, brought out football. हमारे सोल्जर्स में से किसी ने कौन लाया पता नहीं, लेकिन फुटबॉल लाया। Great coats were dumped in piles to make goal post. गोल पोस्ट तो वहाँ पे नहीं था, वो तो युद्ध भूमि थी, लेकिन उन लोगों ने कैसे गोल पोस्ट बनाया? जो उसके बड़े बड़े ग्रेट कोट्स थे, फर्स्ट लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन है, आप एक बार देख लेना। ग्रेट कोट्स था, वो पाइल्स उसको डंप किया गया और ऐसे गोल पोस्ट बना दिया गया। द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीड्स। टॉमी, आपको पता है, मैंने आपको बोला है लास्ट लेक्चर में, इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे, इंग्लैंड के पीपल थे, उसको क्या बोलते थे? टॉमी। और जर्मन के सोल्जर्स को क्या बोलते थे? फ्रीड्स। टॉमी एंड फ्रीड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड।
Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. ठंड को दूर रखने के लिए हम लोग स्टैम्प कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, और दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे दे स्टार्टेड टू प्ले फुटबॉल. There was a moment when I noticed our breaths mingling in air between us. थोड़ी देर में मैंने देखा कि हमारे हमारे श्वास थे वो मिंगल हो रहे थे, एक हो रहे थे. They were not enemies, they had become friends. उन दोनों के श्वास एक दूसरे में मिंगल हो रहे थे. He saw it too and smiled. उसने भी ये देखा कि सबके श्वास एक रहे थे. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve the war. To resolve it means to solve करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना. मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें युद्ध का सॉल्यूशन ऐसे ही निकालना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. युद्ध में तो लोग मर जाते हैं, लेकिन फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा ऑर्फन यानी अनाथ नहीं होता. नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी वाइव्स है, पत्नी है, वो विडो नहीं होती. आई वुड प्रीफर क्रिकेट, उसने जोक की. मैकफरसन ने थोड़ी सी मजाक कर ली. हाँ भाई, जर्मन लोग अच्छे से फुटबॉल प्ले करते हैं, लेकिन हमारे इंग्लैंड के लोग तो क्रिकेट खेलते हैं. उसने क्या बोला? I would prefer cricket. Then we Tommies could be sure of winning probably. If we prefer cricket, then we Tommies, it means we the people of England could be sure of winning. We laughed at that and together we watched the game. हम लोग अच्छे से साथ में बहुत हंसे. टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और गेम जो सोल्जर्स लोग प्ले कर रहे थे उसको हमने साथ में देखी. सैड टू से, कोनी, मुझे ये आपको बताते हुए दुख हो रहा है. कोनी, फ्रिट्ज वन, 2 goals to 1. कौन जीता? जर्मन लोग जीते. कितने गोल्स किए उसने? 2 goals to 1. इंग्लैंड के सैनिकों ने, इंग्लैंड के सोल्जर्स ने 1 गोल किया, लेकिन जर्मन्स ने 2 गोल्स किए. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. उन लोगों ने अपने जनरस होना यानी उदार होना, उसने जनरसली बोला कि हमारा गोल भी अच्छा था. आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, दोनों साइड के सोल्जर्स हैं, वे लोग फुटबॉल प्ले कर रहे हैं और साइड में सब लोग चीयर्स कर रहे हैं. The time came, and all too soon, when the games was finished. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. सबने स्नैप्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, रम और सॉसेज एंजॉय किया. I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. The fighting would end and we could all go home. मैंने ये विश किया कि हम लोग अपने फैमिली को जल्दी से मिल सके. ये युद्ध है, ये वॉर है, वो जल्दी से फिनिश हो जाए और हम लोग अपने अपने घर जा सके. I think that is what every soldier wants on both sides. दोनों साइड्स में सोल्जर्स यही चाहते हैं. टेक केयर जिम मैकफरसन, उसने मुझे बोला, हम लोग यही चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से फिनिश हो जाए और हम अपने अपने घर जा सकते हैं. टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट फॉर यू. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन स्लोली वो चला गया. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. ट्रेंचेस के बारे में हमने आगे के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है. वो जाना नहीं चाहता था. मुझे फील हो रहा था कि वो he wanted to be with me but unwillingly he went. Then कितने ग्रे कोट वाले सोल्जर्स थे, उसमें वो एक हो गया. That night back in our dugouts,
डगआउट्स का मीनिंग भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है. इट मीन्स अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. ग्राउंड में एक होल बना के सोल्जर को छुपने के लिए जो खड्डा निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? डगआउट बोलते हैं. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल. क्रिसमस सॉन्ग को क्या बोलते हैं? कैरोल्स बोलते हैं. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. अच्छे से वो लोग कैरोल बोल रहे थे. इट वॉज स्टिल नेट साइलेंट नाइट. आवर बॉयज गेव देम राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड. उन लोगों ने, हमारे सोल्जर्स ने भी वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड सॉन्ग पे कोरस गाया. वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. A time will treasure as long as I live. समय उसको ट्रेजर करेगा जब तक मैं जिंदा हूँ. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. नेक्स्ट वाली क्रिसमस जब आएगी तब ये युद्ध है वो कुछ नहीं, एक दूर का देखा हुआ टेरिबल मेमोरी, एक दुखद स्मृति रहेगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. लॉन्ग फॉर इट मीन्स अपेक्षा करवी, उसकी इच्छा करना. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. हम लोग जल्दी से मिलने वाले हैं, मुझे ये पता है. योर लविंग जिम. यहाँ पे हमारा यूनिट खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भेजूंगी, थोड़ा पीडीएफ भी भेजूंगी. आपको अच्छे से करना है. ऐसा नहीं कि आप लोग स्टडी को निगलेक्ट करो. आपको पता है कि सब सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, आपको देखना है, आपको अच्छे से समझना है. सब लोग आपको सब चीज़, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपको नोट डाउन करनी है. थोड़े ही मंथ्स में नेक्स्ट ईयर you will be in 9th and then 10th. All these years are very important years for you. ये सब आपके लिए बहुत important years हैं. आपको सब कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखो और जल्दी से सीखो. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर देना. आप स्कूल में भी आ सकते हो. मैं स्कूल पे 1 o'clock और तक रहती हूँ, आप आ सकते हो. इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आपका क्वेश्चंस पूछ सकते हो. अपनी मम्मी पापा को हेल्प करना, अच्छा बिहेवियर करना, अच्छे बच्चे बनना. स्टे होम, स्टे सेफ. गुड बाय, गुड डे, एन्जॉय. आई मिस यू ऑल. अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का ख्याल रखना. फिर से मैं बोलूँगी, stay home, stay safe. Bye.